All right, so let's start. Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to the first session of the Big Data Week as part of the Confis Learning series. Today's session is called Sales Forecasting and will be jointly presented by our engineers Inamul Haq, Mohammad Maz, and Nofil Hassan. During the presentation, please keep your mics muted to avoid any disturbances. If you have any immediate questions for the presenters, you can ask them during the presentation. Otherwise, at the end of the session, we will have a question and answer segment, which will be open for questions and discussions. You can also use the session chat to post your questions as well, and those will be addressed at the end by the presenters. Now let's move to today's session. Our first presenter is Inamul Haq. Inam, over to you. You can start with a brief introduction of yourself and the rest of the participants, and then you can start with the presentation. Thank you. Assalamualaikum everyone. I am Inamul Haq and I am principal software engineer here as well. I am working here for around 6 years, and with me presenting this session, Nofil Hassan and Mohammad Maz. Both Maz is a senior software engineer and Nofil is senior computer vision engineer, and both are working in Confis around 2 years. So I will be presenting a session on sales forecasting. Maz, can you move forward? So here is agenda for our today's session. We'll be discussing our problem statement, importance of sales forecasting, and we will understand the data, how we prepare the data, and we will see the data visualization as well. And we will discuss the forecasting techniques we applied, and we will see the results, and in the end we will have a demo. So here's the problem statement that we are going to predict the sales for a certain store for any particular item for next 28 days. You can say a number of days, but we will be predicting for next 28 days. So for this purpose, we have given the data and we will discuss all the steps, and we will understand the data, we will prepare the data, and we will see the results as well. So importance of sales forecasting क्यों important है हमारे लिए? So it is very important for maintaining supply chain management and eliminate the chances of panic sales on a particular day. हम इस चीज़ को जो है यानी फोरकास्टिंग के थ्रू हम जो है इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. अगर हमारे पास फोरकास्टेड डाटा है तो हमें पता होगा कि व्हाट आइटम इज गोइंग टू बी सोल्ड इन अ सर्टेन स्टोर ऑन अ पर्टिकुलर डे. तो हमारे पास हम उस चीज़ का जो स्टॉक है पहले से मेंटेन करके रखेंगे, और हम जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका टारगेट उस तरह से सेट किया जा सकता है, और फिर इस चीज़ को जो है अवॉइड किया जा सकता है कि हमारे पास कोई इशू ना हो, सप्लाई चेन में कोई इशू ना हो, पैनिक सेल्स ना हो, यानी सेल्स बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती हैं आपकी और आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे फिर एक लैग आता है. और फिर उसके अलावा अगर आपकी सेल्स कम है और आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो इन दी एंड समटाइम्स जो है कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो भी एक चीज़ लॉस में जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्यूरेट फोरकास्टेड डाटा so we can make some decisions and we can take some steps. तो डाटा डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास जो डाटा गिवन था उसमें हमारे पास कैलेंडर का डाटा था, सेल प्राइसेस थी आइटम्स की, और सेल्स एंड वैलिडेशन है. हम इनको वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी देखेंगे. फॉर जैसे कैलेंडर में हमारे पास अराउंड 5 इयर्स का डाटा है, और उसमें 2011 से लेके 2015 तक की ड्यूरेशन का डाटा है. और सेल प्राइसेस में हमारे पास हर स्टोर में किसी पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वीक हमारे पास सेल प्राइसेस हैं. और सेल्स ट्रेंड वैलिडेशन बेसिकली ये हमारा वो बेसिक ट्रेनिंग डाटा है विच वी विल यूटिलाइजिंग फॉर आवर ट्रेनिंग पर्पसेस. इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा कैसे गिवन था और उसके बाद हमने उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया और हमने उसको फिर कैसे ट्रेनिंग की.
ओके तो इस तरह जो हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं डाटा की, जो हमने इनिशियल जब डाटा को एक्सप्लोर किया तो हमारे पास इस तरह के स्टैट्स आए कि हमारे पास अराउंड 5 इयर्स का डाटा है। यूनिक स्टोर्स कितने हैं, उसमें यूनिक आईडीज कितनी हैं, यूनिक आइटम्स कितनी हैं हमारे पास। तो अराउंड 3049 हमारे पास यूनिक आइटम्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास 7 डिपार्टमेंट्स हैं, कैटेगरीज हैं, स्टेट्स हैं। हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, और जो है फिर उसके बाद हम अपना मॉडल पे जाएंगे। ओके तो अगर हम डाटा को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, तो जैसे हमने अभी यूनिक आइटम्स की बात की थी, डिपार्टमेंट्स की बात की थी, तो उसकी फर्दर जो डिटेल है वो जैसे हमारे पास आइटम आईडी है। आइटम आईडी बेसिकली यूनिक आईडी ऑफ एनी आइटम है। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, कैटेगरी आईडी है, स्टेट आईडी है, स्टोर आईडी है, और आईडी है जो कि इन सबका कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली हमारे पास जो है 10 टोटल स्टोर्स हैं, और हर आइटम जो है वो हर स्टोर में है। सो इफ यू मल्टीप्लाई items to the total store, so we will get total 30,490 items. टोटल आइटम्स इतनी है अगर यूनिक कम्बिनेशन देखा जाए, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास एक्चुअल यूनिक आइटम्स हैं वो हमारे पास 3049 ही हैं। ओके प्लीज गो बैक। हमारे पास डे की इंफॉर्मेशन है। डे की इंफॉर्मेशन में उसी तरह से हमारे पास डाटा है D1, D2, D3 टू D 1913। तो हमारे पास टोटल अराउंड 5 इयर्स का डाटा है। और फिर हमारे पास यूनिट सेल्स का डाटा है कि एक आइटम जो है एक दिन में कितनी सेल हुई है, और उसकी सेल प्राइस क्या थी उस स्टोर के लिए, उस वीक के लिए, उस डे के लिए। मंथ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कैलेंडर से, वीक डे, ईयर, ये जो है ईयर वीक एक यूनिक वीक है, ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कैलेंडर से। और उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज Inam, we can't hear you. इनाम आपकी आवाज नहीं आ रही। So, given के इनाम का, I think let me see. I think उनका connection का शायद issue हुआ होगा. Let's see. अच्छा, इनाम के जो को प्रेजेंटर हैं नौफल, में भी आप you can take over from here in the interest of time. जी, इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने इसमें एक और फीचर ऐड किया जिसमें हमारे पास आ रहा होता है कि फलां दिन जो था वो कोई इवेंट था या नहीं था, क्योंकि इवेंट होने की वजह से आपकी सेल्स की प्राइस के ऊपर अच्छा खासा जो है वो आपके यूनिट सेल्स के ऊपर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर दैट वी आर लुकिंग इन दिस डेटा एज वेल. So moving forward on to the data preparation part. So this is the data that we had initially. और इस डेटा के अंदर देख के एक बहुत कॉमन चीज है वो आइडेंटिफाई होती है कि आप उस डेटा को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। और इसमें एक मेजर रीजन है जो कि मैं चाहूंगा कि अगर ऑडियंस में से कोई आइडेंटिफाई कर सके कि क्या इसमें ऐसी रीजन है कि आप इसको जो है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। So anyone, what is the issue with this data? Anyone from the audience, any random guess? Okay, so let's demystify the issue with the data. Hello? Yes, anyone? Yes. So I want to say that
basically maybe the zero values, because if you want to implement like time series, so you can't use the zero values. Maybe this is the reason, or the empty column, which is the second last column. So वो that is not actually the empty column. वो शो कर रहा है कि आपके D4 से D19 13 के दरमियान काफी ज्यादा कॉलम है, तो वो डॉट 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 Naufal Mustafa here. I have, I think for some columns you have same values, so they are not providing us any extra information. For example, department ID and ID. So for these columns we have same values for all the three rows. So such kind of data cannot provide any useful information, I guess, in training and testing. बिल्कुल, ये डेटा क्लीनिंग वगैरह के अंदर जो है ये सारे पार्ट जो एड्रेस होंगे। इसके अलावा एक बहुत मजे की मिस्टेक है इसके अंदर जिसकी वजह से हम इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, और वो ये है कि हमारे पास, क्योंकि आपके पास 5 सालों का डेटा है जिसके अंदर 1913 डेज आ रहे हैं, तो अगर आपके पास इतने ज्यादा कॉलम होंगे तो वो डेटा को इस्तेमाल करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए इस डेटा को जो है वो कन्वर्ट किया, हम लोगों ने कन्वर्ट किया और इस शेप के अंदर कन्वर्ट किया कि आप जो है वो उसको इजीली यूज कर सकें। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख सकते हैं कि उस डेटा को जो है वो किस Sorry, तरह I से got convert- disconnected, so I am back. So जी नाम पे प्लीज टेक ओवर। okay. As Naufal said that कि हमारे पास डेटा में इशू ये था कि we are going to predict for the next few days. तो अगर आपके पास डेटा कॉलम्स में है तो ऑब्वियसली आप कॉलम्स को प्रेडिक्ट उस तरह से नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रेडिक्ट इन फॉर्म ऑफ रोज, यानी आपके पास कोई नई आइटम आएगी या कोई नई इनपुट आएगी और उसके अगेंस्ट आप कोई चीज जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे होंगे। तो इस केस में अगर आप देखें इस वक्त भी अराउंड 2000 कॉलम्स हैं, और इसमें अगर 1 साल का डाटा प्रेडिक्ट करना हो या 2 साल का करना हो तो उसमें आपके पास इतने ही कॉलम और ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए जो बेहतर अप्रोच है वो हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो कैन यू प्लीज मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हमने क्या किया है, इसमें एक अप्रोच होती है कि डाटा को पिवट अनपिवट करने की। तो हमने क्या किया है, अनपिवट किया है। जो आपके पास कॉलम्स थे उनको हमने एक्चुअली रोज में कन्वर्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वी हैव आइटम आईडी। अगर एक हम आइटम को देखें और उसके पर्टिकुलर डे के ऊपर उसकी क्या यूनिट सेल थी, और इसमें अगर हमने जैसे कोई और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम कैलेंडर, जैसे हमारे पास डे जो है वो यूनिक वैल्यूज हैं, उसमें D1, D2, D3 एंड D4 ये यूनिक वैल्यूज हैं। कैलेंडर में भी यही यूनिक वैल्यूज हैं। तो अगर आपने कैलेंडर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस फॉर्म में सकते हैं कि आपके पास वो ऑलरेडी कॉलम में है, आप किसी और नए कॉलम में जाएंगे, आप नए कॉलम ऐड करेंगे, वो कॉलम बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे और उसको व्यू करना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा उस पे। तो इसलिए हमने उस डाटा को कन्वर्ट किया है इन फॉर्म ऑफ रोज। अब यू कैन सी क्लियरली कि हमारे पास डे 1 के अगेंस्ट एक्चुअल क्या है, डे 1 का मंथ क्या था, वीकडे क्या था, ईयर क्या था, उसकी सेल प्राइस क्या थी, और इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ रोज तो बढ़ गई हैं, ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई हुई हैं, लेकिन हमारे पास डाटा ट्रेनिंग के लिए बेहतर अंदाज में प्रिपेयर हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्लियर एक पिक्चर है कि किस तरह से आपके पास उस पर्टिकुलर डे पे क्या ट्रेंड चल रहा है। और उसके बाद फिर हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलेंडर से ऐड की है। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था, इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि इवेंट 1 हमने बेसिकली ये दो जो है ये बूलियन ऐड किए हैं, ये 0 या 1 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसलिए किया है कि हमारे पास स्पार्सिटी रिमूव हो जाए डाटा में से। क्योंकि अगर आपके पास डाटा बहुत ज्यादा नल वैल्यूज हों, जैसे आपके पास इवेंट्स बहुत कम होंगे साल में, तो उसके बाद आप में बहुत ज्यादा नल वैल्यूज होंगी, तो वो नल वैल्यूज बहुत ज्यादा, और फिर आप उन नल वैल्यूज को इतना फिल भी नहीं, क्योंकि दे आर एक्चुअली कैटेगरिकल वैल्यूज, तो आप उनको फिल भी नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे पास सेल प्राइस मिसिंग होती तो हम ठीक है उसकी सेल प्राइस एवरेज कैलकुलेट कर लेते या कुछ और समहाउ हम उसको फिल कर लेते, लेकिन इस केस में उसको फिल नहीं किया। तो हमने फिर क्या किया, हमने जस्ट ये देखा है कि इज देयर इज एन इवेंट 1, तो हमने उसको 1 मार्क कर दिया, अदरवाइज वी हैव मार्क 0। सो वी विल सी इट फर्दर इन नेक्स्ट स्लाइड्स। अच्छा, उसके बाद हमने डाटा को प्रिपेयर किया है। तो हमने सबसे
पहला काम ये किया कि हमारे पास जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं लाइक नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जिनमें हैं उनको हमने कन्वर्ट किया है न्यूमेरिक कॉलम्स में, तो जो ताकि जो हमारा मशीन लर्निंग का जो कोड है वो उसको जो है उस पर प्रोसेस कर सके और उस पर अपनी ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो मेथड है उसको हमेशा जो है न्यूमेरिक वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, वो उसके ऊपर जो है आपकी कैटेगोरिकल वैल्यूज या स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर मैनिपुलेशन नहीं करता। प्लीज ओके। जैसे मैं मिसिंग डाटा की बात कर रहा था, तो हमारे पास जो है इस सारे डाटा में जो है सेल प्राइसेस कुछ केसेस में मिसिंग थी, तो उसके लिए हमने जो मेथड चूज किया उसको फिल करने के लिए वी चूज द नियरेस्ट अवेलेबल सेल प्राइसेस फॉर एन आइटम टू फिल दैट गैप। तो हमारे पास अराउंड यू कैन सी के 50 लाख के करीब हमारे पास सेल प्राइसेस मिसिंग थी, और उसके बाद हमने उसको फिल किया है जब उस मेथड से, तो हमारे पास इस टाइम कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। सो नाउ दिस इज रेडी फॉर ट्रेनिंग। उसके बाद हमने कुछ ट्रेंड्स, अभी हमने उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई प्रिडिक्शन नहीं की, जस्ट जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा था उसके ऊपर हमने कुछ विजुअलाइजेशन की है। वी हैव टेकन एनी आइटम, और ये कोई भी आइटम है, इसमें अभी कोई ये नहीं है कि ये कोई ब्रेड है, कोई जूस है, और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये कोई भी आपकी आइटम है, उसकी एक ट्रेंड गिवन है ओवर द ईयर कि उसका एक साल में किस तरह से उसका है कि उसके किस डे पे कितने यूनिट्स जो हैं वो सेल हुए हैं। तो यू कैन सी अलोंग एक्स एक्सिस देयर आर डेज, एंड यू कैन सी अलोंग वाई एक्सिस देयर आर एक्चुअल यूनिट सेल्स। ओके, यहाँ पर हमने उस ट्रेंड को कन्वर्ट किया है टोटल यूनिट सेल्स ऑफ एन आइटम पर मंथ के। पर मंथ पहले आपने जो ट्रेंड देखा था वो डेज का था, अब हमने एक साल में ही उसी को जो कन्वर्ट किया है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर हर एवरी मंथ में उसका क्या सेल ट्रेंड रहा है। सो हियर इज एन ट्रेंड फॉर एनी आइटम। यहाँ पे हमारे पास एवरेज यूनिट सेल है ओवर द इयर्स, ये किसी पर्टिकुलर आइटम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये टोटल आइटम्स की टोटल एवरेज सेल है ओवर द 5 इयर्स। सो यू कैन सी द ट्रेंड्स गोइंग अपवर्ड। तो इस तरह से हमने ये डाटा को पहले विजुअलाइज किया है टू बेटर अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स इन द डाटा सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट बेटर। सो एक कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे अभी तक किसी का? So I think let's continue. If you guys have any question, you can post it in the chat window, and we will have a question answer session in the last as well. So now without I will wasting any hand time, over to Mas. Yeah, sure. Over to you, Mas. Can you guys? Yeah, sure. Can you guys hear me? Yes. Yes, Mark. Yeah, sure. Let's continue with the forecasting techniques. So there are a lot of forecasting techniques in the literature, but we decided to go with the two techniques. The first one is DNN regressor, and the second one is decision tree regressor. So let me explain a little bit about the difference between the classification and regression. So जैसे अगर मशीन लर्निंग की बात करें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो उसमें आमतौर पर दो किस्म की टेक्निक्स यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, एंड द सेकंड वन इज नोन एज द रिग्रेशन. Classification is about predicting a label, right? For example, you have a plenty of images. Some images contains cats, some images contain dog. If you are only predicting that whether a dog is here or not, or what is the which animal in the image is, then it will be a, you're gonna say, the classification problem, right? And if you want to predict a quantity, आप कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल एज की प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं कि एक पर्सन की एज कितनी होगी, राइट? इट्स अ quantity, it's a continuous value. So this problem is known as the regression. So in our case, we need to forecast the sell prices. We need to forecast how much the quantities will be sell
in upcoming days. So we need to forecast or predict the quantity. So that's why this problem is a regression problem. And we decided to use two types of regressions for this problem. And the first one is DNA regression, and the second one is decision tree regression. So let's start with the DNA regressor. So what is a DNN? DNN is a deep neural network. It's a type of an artificial intelligence, and it can predict the continuous values. So uh, what is the DNN? DNN, you can say that a DNN is a black box जिसको आप क्या करते हो, एक input provide करते हो, आपको जो आपके corresponding जो है output हो गए आपको provide कर देता है, आपको predict करके दे देता है. अब उस black box में क्या होता है? उस black box में आमतौर पे तीन चीजें होती हैं. There are three basic building blocks of a DNN. The first one is input layer, the second one is hidden layer, and the third one is output layer. So जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इनपुट लेयर क्या होगा, जो हमारा इनपुट डाटा होगा वो हम फीड करेंगे इनपुट लेयर के थ्रू. हिडन लेयर्स क्या होती हैं कि these layers are actually used to learn the function, the transformation function, जो कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है. एंड सिंपली वी विल हैव द आउटपुट लेयर जो हमें इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. तो डीएनएन्स की अगर आप लिटरेचर सर्वे करें या इसके थ्योरी आप स्टडी करें तो यू कैन फाइंड आउट दैट कि नॉन लीनियरिटीज जब होती हैं डाटा में तो डीएनएन रिग्रेसर जो होते हैं वो आमतौर पर एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं. Let's move forward. Here is a pictorial view of DNN regressor. So you can see we are feeding the data in a input layer. फिर उसके बाद hidden layers हैं, multiple hidden layers हो सकती हैं, और eventually हमें जो output चाहिए होती है उसके मुताबिक हम output layer को design कर रहे होते हैं. So in any machine learning, जो भी आपका मशीन लर्निंग मॉडल होता है या कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम जब आप डिजाइन करते हो, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इट्स स्टैटिस्टिक्स, इट्स मैथमेटिक्स, राइट. तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हो, इनपुट से आउटपुट के दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, एक मैथमेटिकल फार्मूला लर्न कर रहे होते हो. सही है. तो बेसिकली हिडन लेयर्स जितनी ज्यादा हम इंक्रीज करते जाएंगे उतनी हम क्या करेंगे, इसमें नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे, और बेसिकली होगा क्या कि हमारे डाटा को डीएनएन जो है वो ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाए. सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ डीएनएन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि जहाँ पे नॉन लिनियरिटीज होती हैं वहाँ पे ये एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं, राइट. एंड इन क्लासिकल मशीन लर्निंग you may have known about the word feature engineering. तो बेसिकली आपको फीचर इंजीनियर करना पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ता है, डाटा को स्टडी करना पड़ता है, रिग्रेसिवली स्टडी करना पड़ता है, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फीचर्स जो होंगे वो बेहतर होंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई एम लेट्स से प्रेडिक्टिंग द एज ऑफ अ पर्सन बाय जस्ट लुकिंग एट हिज फेस, तो वहां पे मैं यानी कि फीचर इंजीनियरिंग कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल उसकी आंखें उसकी कैसी होंगी, ठीक है, उसके चेहरे के आप कह लें कि पिक्सल्स या उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगे कि नहीं होंगे. मल्टीपल यानी कि आप कह सकते हैं उसके हेयर का कलर मैं देख सकता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये सारे फीचर्स मैं निकाल रहा हूँ जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इवेंचुअली एज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. So in classical machine learning, you have to do feature engineering and it consumes a lot of work. So DNN या artificial intelligence की जो एक type है इसमें हमें ये आप कह लेंगे एज मिल जाता है. उसमें ये होता है कि हमें फीचर इंजीनियरिंग जो है रेग्रेसिव फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती, and the machine learning algorithms, the deep neural networks will take care of this for us. And again, DNNs जो है काफी scalable solution है. You can यानी कोई भी आपके पास यानी कि नॉन लिनियरिटी फंक्शन है तो आप ऑलमोस्ट हर नॉन लीनियर फंक्शन, हर किस्म के डाटा को डीएनएन से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. ठीक है. यू जस्ट हैव टू इंक्रीज द हिडन लेयर्स काउंट, और आपके जो नेटवर्क है, आपका जो मॉडल है, उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी. एंड दिस इज रियली इजी. सो ये तो सारी हो गई अच्छी बातें डीएनएन के मुताबिक. सो एनी ऑफ यू who can point out some disadvantages of DNN? Any random guess? आवाज आ रही है? Yeah, we can hear you, but बहुत कम आ रही है. If you can increase the volume. ये हो सकता है कि हम जितना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो सकती है ना कि वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा.
और दूसरी हो सकती है कि जब उसको बैक प्रोपोगेट करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट वैनिश हो सकता है। Yeah, that's great. That's great. Anyone else? So basically, sometimes it happens कि when you use a deep neural network with a lot of hidden layers, so it sometimes overfits and does not give us the correct solution. Yeah, that's great. So last one, and then we'll move forward. If Sorry, anyone can may I make a suggestion that anyone who answers, it would be great if they can first tell their name. Thank you. So last volunteer to answer any disadvantages of DNN. Zulfikar here. So I'm not particularly DNN, but in generally with deep neural networks, you need a lot amount of data. So this is probably one of the disadvantage because you cannot uh, apply these on small amount of data. Yeah, that's perfect. So आप लोगों ने सारा कुछ तकरीबन explain कर दिया. That's great. So सबसे पहली बात overfitting. यानी कि आप जब DNN यूज कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो कि complexity जब इंक्रीज करते जाते हो तो बेसिकली वो प्रून हो जाता है ओवरफिटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरफिटिंग? जो कि आपके पास ट्रेनिंग डाटा होता है, राइट? तो DNN में इतनी आप उसको यानी कि एबिलिटी टू लर्न आप इंट्रोड्यूस करवा देते हो कि बेसिकली होता है क्या, वो उस डाटा को याद कर लेता है, राइट? तो उससे जरा सा भी हटके डाटा आता है जो कि हम उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसने कुछ याद किया होता है, रट्टा मारा हुआ होता है, तो वो फिर रट्टा वाला अगर फिर एग्जाम में थोड़ा सा भी हम क्वेश्चन को छेड़ के हम प्रेजेंट कर दें तो वो फिर वहां पे फेल हो जाता है. सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ DNN. ठीक है, और ओवरफिटिंग को हैंडल करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ डाटा कि हम उसको इतने सिनेरियोस दे दें कि वो ओवरफिट कर ही ना सके. सो दिस इज डिसएडवांटेज कि आपको बहुत ज्यादा डाटा चाहिए एक अच्छा DNN ट्रेन करवाने के लिए. और अगेन डीप न्यूरल नेटवर्क अगर इसको आप कंप्यूटेशनली देखे जाओ तो कंप्यूटेशनली ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनके ट्रेनिंग काफी एक्सपेंसिव होती है. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू ऑप्टिमाइज द ट्रेनिंग एंड इन्फेरेंस, लेकिन दे स्टिल कंज्यूम अ लॉट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एज या जेंडर प्रेडिक्टर DNN अपने ट्रेन करवाना है तो आपको GPUs पे ट्रेन करवाना पड़ेगा और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स और GPUs अराउंड $1000 के आते हैं. ठीक है, और GPUs पे वो आपके तकरीबन आवर्स लेता है, 6 आवर्स 12 आवर्स. दीज आर जस्ट आप कह लें कि बहुत कम ड्यूरेशन है कि फॉर एग्जाम्पल 6 घंटों में जो एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो ये एक बहुत छोटा न्यूरल नेटवर्क होता है जो 6 घंटे में ट्रेन होता है. तो समटाइम्स इट टेक्स डेज. सो दिस इज द डिसएडवांटेज. एंड द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फॉर एग्जांपल DNN इज अ ब्लैक बॉक्स, राइट? इनपुट होती है और आप आउटपुट ले लेते हो. अंदर ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है, आप ब्लैक बॉक्स को डिजाइन तो कर सकते हो, राइट? लेकिन ब्लैक बॉक्स में जो आपने डिजाइन किया है उसके इंट्यूशन क्या है, राइट? बेसिकली DNN के ब्लैक बॉक्स में हो क्या रहा है, यू कैंट से अबाउट दैट, और आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते. नाउ द रिसर्च इज प्रोग्रेसिंग टू विजुअलाइज दोज थिंग्स, लेकिन स्टिल DNN is considered as a black box. So the last one is the domain adaptation. Domain adaptation basically होता है कि फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कि मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स थी वो मैंने लाहौर के लिए बनाई थी, तो अगर मैं वो कराची में चलाने पड़ेंगे तो मुझे क्या वो चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे? सो इन DNN केस अगर आपने लाहौर के लिए कोई मॉडल बनाया तो कराची में ऑलमोस्ट नहीं चलेगा. सो अगर वो कराची में चल जाता तो इसका मतलब था उसने डोमेन को अडॉप्ट कर लिया. सो डोमेन अडॉप्टेशन इज रियली डिफिकल्ट इन DNNs. और इंशाल्लाह इन दिस बिग डाटा वीक विल बी हैव अ एक्सपर्ट प्रेजेंटर डॉक्टर मोहसिन जो कि इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे. सो दिस इज ऑल. So this is all about the DNN, and hopefully you are enjoyed. So over to Nofil to present the decision tree regressor. So the second technique we utilize for sales forecasting is the CNP regressor. So CNP हमारे पास उसी तरह से दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं कि आप उनको क्लासिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
ये प्रॉब्लम क्योंकि स्पेसिफिकली रिग्रेशन का है, तो इसलिए डिसीजन ट्री को एज अ रिग्रेसिव यूज किया गया है। डिसीजन ट्री आपके पास काफी इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम है। हम लोग कारों ने ट्रीज पढ़े हुए डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने बैचलर्स के अंदर। तो डिसीजन ट्री का भी मोर सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बाइनरी ट्री से, और उसी तरह से आपके पास नोड्स होते हैं और फिर वो नोड्स फर्दर डिवाइड होते हैं डिफरेंट सब ब्रांचेस के अंदर, एंड दो सब ब्रांचेस कीप ऑन डिवाइडिंग अंटिल द एंड। सो आपके पास इनिशियली जो आपके पास मेन नोड होता है, वहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा डाटा मौजूद होता है, और फिर उस नोड से आप डाटा को दो पार्ट्स में, सब पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, और फिर वो सब पार्ट्स हैं फर्दर स्प्लिट करते जाते हैं। इस तरह से आपके पास डिसीजन ट्री जो है वो ग्रो करता है। सो डिसीजन ट्री जो है इसके अंदर हमारे पास नोड्स, जैसा कि बताया, नोड्स होते हैं जिनके पास आप, जिनके ऊपर आप कोई भी एल्गोरिथम कोई भी क्राइटेरिया लेके उन नोड को स्प्लिट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो है वो लीफ नोड जाते हैं जिनके ऊपर आपका जो है वो रिजल्ट होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन डिसीजन ट्री। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक पर्सन है जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी एज 30 से कम है या 30 से ज्यादा है। सो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास जो पर्सन है उसकी एज 30 से कम है, तो हम यस वाली ब्रांच में चले जाएंगे, और फिर उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ ही ईट्स अ लॉट ऑफ फास्ट फूड और नॉट। So of course, if he eats a lot of fast food, so he is classified as unfit. Otherwise, he will be classified as fit. और अगर हम दूसरी ब्रांच के अंदर देखें जिसमें पर्सन की एज है वो 30 से ज्यादा है, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि if he exercise regularly or not. So if he exercise regularly, that he will be classified as fit. Otherwise, he will be classified as unfit. So this is an example of decision tree as a क्लासिफायर। इसी चीज को हम रिग्रेशन में भी बदल सकते हैं, और उसका भी मोर लाइक सेम इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि आपके पास नोड्स होते हैं, नोड्स के ऊपर आपके पास डिफरेंट फीचर्स की बेस के ऊपर डाटा स्प्लिट हो रहा होता है। तो हमारे पास ये फीचर था कि आपकी जो एज है वो 30, आपकी जो आपका फीचर था एक एज का कॉलम, जिसमें से आपने थ्रेशोल्ड निकाला कि मुझे 30 की बेस पे स्प्लिट करना चाहिए। तो आपके पास इसी तरह से फीचर्स होते हैं और आप उनके ऊपर एक वैल्यू निकालते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आप फीचर को स्प्लिट करते हैं, और इस तरह से आपका जो है वो डिसीजन ट्री ग्रो करता है। सो अब हम डिसीजन ट्री के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से। सो डिसीजन ट्री का एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है वो हमारे पास ये है कि डिसीजन ट्री क्योंकि एक ग्रीडी एल्गोरिदम है और ये डाटा के अंदर सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है, तो आपके पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो है वो डिसीजन ट्री के थ्रू कंसिडर हो जाते हैं कि आपका जो डिसीजन ट्री है वो तमाम पाथ्स के थ्रू जो है वो फ्लो करता है। इसी तरह से आपके पास जब कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, कोई फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, तो डिसीजन ट्रीज जो है वो प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हैं आपकी जो डिफरेंट ऑप्शंस है उनको कंपेयर करने के लिए। और फाइनली जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि हम लोगों ने क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने बैचलर्स में पढ़ा हुआ है, तो ये एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना काफी आसान है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एल्गोरिथम जिसके अंदर हमारे पास जो है वो काफी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी। So moving on to the disadvantages of decision tree. So जैसा कि ये एक greedy algorithm है, so it requires a lot of memory and time for calculation or training. और decision tree के अंदर क्योंकि हमारे पास नोट्स जो हैं वो स्प्लिट हो रहे होते हैं बेस्ड ऑन ये फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से है, तो अगर आप डाटा के अंदर कुछ चेंज करते हैं, आपके डाटा के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, तो आपके पूरे के पूरे डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, जिससे एट द एंड ऑफ द डे आपके फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास क्योंकि इसके अंदर आपने सारे पाथ्स एक्सप्लोर करने होते हैं डाटा के अंदर, डिसीजन ट्री का जो है वो
इनबिल्ट स्ट्रक्चर इस तरह के कि वो डाटा में सारे पास एक्सप्लोर करते हैं, तो आपके पास जो ट्रेनिंग टाइम है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसके अंदर। और लास्टली ये है कि आपके पास डिसीजन ट्री क्योंकि एक ग्रीडी एल्गोरिथम है और ये बड़ा तेजी से जो है वो कहता है कि ये रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, तो इसलिए आप डिफरेंट डिसीजन ट्रीज को यूज करके एक फाइनल रिजल्ट देते हैं जिसको हम एंसेंबल मेथड भी कह सकते हैं कि आप डिफरेंट एल्गोरिथम से प्रेडिक्शंस देके और फिर उनकी जो मोस्ट पॉपुलर प्रेडिक्शन है उसको यूज करें, या इसका इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है जिसको हम रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट ट्रीज लेते हैं और उनसे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि इसमें काफी सारे जो है वो दरख्त हैं। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द हाइपर पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड इन डिसीजन ट्रीज। सो डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास हर नोड पे हमने अपने डाटा को स्प्लिट करना होता है। सो हमारे पास डिसीजन ट्री के अंदर एक स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है कि आपने किस क्राइटेरिया के बेस पे नोड को स्प्लिट करना है। जैसा कि हमने एग्जांपल के अंदर देखा कि हमारे पास क्राइटेरिया जो था वो ये था कि हमारी जो एज का जो फीचर था, उस एज के फीचर के अंदर आपने एक 30 वैल्यू चूज कर ली कि इस 30 वैल्यू के ऊपर जो है मैंने उसको स्प्लिट करना है। और फिर आपने इसमें ये भी देखना होता है, आपके पास वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो आपके पास ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल जो आपके पास फर्स्ट नोड था उसके ऊपर 5 फीचर्स अवेलेबल थे, तो उसमें से कौन सा फीचर ऐसा है कि जिसको आपको सबसे पहले स्प्लिट करना चाहिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो डिसीजन ट्री में होता है इस तरह से कि जब आप डिसीजन ट्री स्टार्ट करते हैं रूट नोड से, तो आप रूट नोड के ऊपर मोस्ट वैल्यूएबल फीचर की बेस पे स्प्लिट करते हैं। जो फीचर मोस्ट आपको सबसे अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके डेटा के अंदर 5 फीचर्स हैं और आप सिर्फ एक फीचर की बेस पे स्प्लिट करते हैं और आपके पास जो है वो 70% एक्यूरेसी आ जाती है कि आप कहते हैं मैं सिर्फ एज की बेस पे स्प्लिट करता हूँ बंदों को, और उसमें से जब मैं स्प्लिट करूंगा तो जो क्लासिफिकेशन मेरे पास होगी वो 70% एक्यूरेट होगी। तो दिस इज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कि आप चेक करते हैं कि कौन सा फीचर ऐसा है जो कि आपको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप उसकी बेस पे स्प्लिट करें तो आपके पास मैक्सिमम एक्यूरेसी आएगी। सो इसी तरह से हम जब अगली स्टेज पे आते हैं, जब रूट नोड से आगे आते हैं, तो उसके बाद जो मोस्ट वैल्यूएबल फीचर बचता है उसकी बेस पे स्प्लिट करते हैं। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर एक हाइपर पैरामीटर है मैक्सिमम डेप्थ के नाम से, कि आप जो अपना ट्री बना रहे हैं उसकी आपने मैक्सिमम डेप्थ कितनी रखनी है कि वो कितने लेवल्स तक नीचे जाए। इसी तरह से मैक्सिमम फीचर्स भी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल डाटा में जो है वो 1000 फीचर्स हैं, तो आप 1000 फीचर में से कितने फीचर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने डिसीजन ट्री के अंदर। फीचर्स को यूटिलाइज करने का मतलब है कि उन फीचर्स वो फीचर्स जो है वो आपके डेटा को स्प्लिट कर रहे होंगे, वो नोड्स पे आ रहे होंगे वो फीचर। इसी तरह से हमारे पास जो एक और हाइपर पैरामीटर वो मैक्सिमम लीफ नोड्स है। तो इन सारे हाइपर पैरामीटर्स का जो मेन मकसद है, खासतौर पे जो आखिरी 3 है इनका मेन मकसद जो है वो ये है कि आप जैसे जैसे अपने डिसीजन ट्री की कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, उसकी मेमोरी बढ़ाते जाएंगे, वो उतना अच्छा डाटा को जो है वो याद करना शुरू हो जाएगा। और इसमें जाहिर बात है एक टाइम आएगा कि जब आपका डिसीजन ट्री जो आपके डाटा को पूरी तरह से जो है वो याद कर चुका होगा और आप उसको अपने डाटा में से कोई भी एग्जांपल देंगे वो आपको 100% रिजल्ट्स देगा। लेकिन उसमें इशू ये है हमारे पास, अगेन जो हमने पहले भी बात की, हमारे पास ओवर फिटिंग हो जाती है। तो अगर हमने उसको जिस डाटा पे ट्रेन कराया है उसके अलावा किसी और डाटा में से उसके अलावा किसी और डाटा पॉइंट को हम उसको इनपुट करेंगे तो वो शायद उस तरह के रिजल्ट ना दें। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इन हाइपर पैरामीटर्स को कोशिश करते हैं कि इस तरह से ना रखें कि वो बिल्कुल ही जो है वो आपका डिसीजन ट्री इतना ग्रो कर जाए कि फिर उसके बाद आपका कोई और डाटा पॉइंट जो सही से क्लासिफाई ना कर सके। तो मूविंग ऑन, हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं हमारे पास किस तरह के, और रिजल्ट्स के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें हेल्प करती है अपने एल्गोरिदम को भी डिजाइन करने के अंदर, अपने हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के अंदर। तो हमारे पास जो डिसीजन ट्री के रिजल्ट्स हैं इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आइटम था ब्रेड, उसके कितने पीसेस जो है आपके पास सोल्ड हुए हैं, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपके पास डेज है। तो दीज आर द सैंपल पॉइंट्स के डे 0, डे 1, डे 2, और आपके पास उस दिन कितने पीसेस सोल्ड हुए हैं। तो इसमें हमारे पास जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी प्रिडिक्शंस ऑन दिस डेटा,
और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करिए कि हमारे पास एक्चुअली उस दिन कितने पीसेस सोल्ड हुए थे। तो अगर हम इस ग्राफ को एनालाइज करें तो इसमें एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड नजर आता है कि आपका जो एल्गोरिथम है उसने एक्चुअल डेटा की जो कह लें कि जो रेगुलर उसकी एक वेरिएंस थी कि उसमें यूजुअली जो है वो आपके 2 पीसेस सोल्ड होते हैं, उसने आपके एल्गोरिथम में वो चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से लर्न कर ली है। लेकिन उसमें जब एनोमलीज आती हैं कि आपके किसी दिन जो है वो 2 से कम पीसेस सोल्ड होते हैं या 2 से ज़्यादा पीसेस सोल्ड होते हैं, तो आपका एल्गोरिथम जो है उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता। तो इससे हमें आइडिया होता है कि आपके जो एल्गोरिथम है आपको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। आपको अगर डिसीजन ट्री के हिसाब से देखें तो आपको उसकी डेप्थ बढ़ानी चाहिए या आपको फीचर्स बढ़ाने चाहिए ताकि आपका एल्गोरिथम जो है वो इस कैपेसिटी पे पहुंच जाए कि वो इस डेटा को बेहतर मॉडल करना शुरू कर दे। लेकिन अगेन आपको ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी होती है कि आप उसकी कैपेसिटी को इतना ज़्यादा ना बढ़ा दें कि वो बिल्कुल ही इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीन लाइन के ऊपर जो है वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर दें। तो इस तरह से भी आप अपने एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने इसमें कौन सा हाइपर पैरामीटर जो है वो छेड़ना है, किसको ज़्यादा करना है, किसको कम करना है। दिस हेल्प्स लॉट इन डिजाइनिंग द एल्गोरिथम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लॉस किस तरह का था। लॉस का ये मतलब है कि आपके पास जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर थी। तो अगर हम लॉस के अंदर देखें तो हमें लॉस के अंदर भी एक रेगुलर सा ट्रेंड नजर आता है अपार्ट फ्रॉम कुछ स्पाइक्स जो कि हमने देखी है पीछे की क्यों स्पाइक्स आ रही हैं और किस तरह से आ रही हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डेमो की तरफ जिसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो कोड इसको किस तरह से किया गया। सो वी हैव यूज्ड पाइथन फॉर ऑल दिस प्रोजेक्ट और हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल किया इसके लिए। जुपिटर नोटबुक यूजुअली इजी टू यूज है और प्रेजेंट करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। सो मार्क वी हैव द कोड प्लीज। जितनी देर में डेमो के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। Naufal Mustafa here. I have a question that have you guys incorporated pruning, like pre-pruning or post-pruning in implementation of decision trees, or you didn't require that? नहीं, इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रूनिंग इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन बिल्कुल प्रूनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर ऑल अदर्स जो कि इस चीज़ से वाकिफ नहीं है तो प्रूनिंग आपके पास ये है कि आपने एक दफ़ा अपना पूरा का पूरा डिसीजन ट्री जो है उसको ग्रो कर दिया, गिवन द हाइपर पैरामीटर्स आपने पूरे का पूरा डिसीजन ट्री ग्रो कर लिया और फिर उसके अंदर आप ट्रेवर्स बैक करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे नोड्स हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज हैं जो कि आपको कोई कंसिडरेबल इनपुट नहीं कर रही है आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो आप उनको जो है वो बीच में से डिलीट कर देते हैं या उड़ा देते हैं और उससे ओवरऑल आपके पास रिजल्ट ये बनता है कि आपके पास जो आपका मॉडल है एक तो वो लाइट हो जाता है कि उसकी जो है वो स्पेस जो है वो जो भी स्पेस यूटिलाइज करे तो स्पेस कम हो जाती है। दूसरा आपका एल्गोरिथम जो है वो फास्ट भी हो जाता है कि उसके अब ऑप्शंस कम है। फॉर एग्जांपल अगर उसके पहले 10 ऑप्शन से होके फाइनल आंसर पे आना था तो आपने बीच में 3 उड़ा दिए ऑप्शन, तब उसका पाथ छोटा हो गया तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी आ जाएंगे। अब कीपिंग इन माइंड कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो उससे अफेक्ट नहीं हो रही, तो आप ये चीज़ों को देख के जो है आप सो डेमो हमारे पास ओपन हो गया। क्विकली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। सो सबसे पहले सेल नॉट फेमिलियर विद जुपिटर नोटबुक, आई वुड रिकमेंड कि आप अगर पाइथन पे कोई काम करना है और इनिशियल काम है तो आप इसको यूज़ करें। काफ़ी इजी टू यूज़ है और काफ़ी आसान रहता है, प्रेजेंट करने में भी काफ़ी इजी रहता है। तो इसके सबसे पहले सेल के अंदर हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना डेटा रीड कर रहे हैं और डेटा रीड करने के बाद डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा के अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं, किस तरह से रोज हैं, क्या कुछ है। फिर उसके बाद अगले सेल्स के अंदर हम जो है वो डेटा को की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डेटा के अंदर कितने जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं,
डाटा के अंदर हमारे पास कितनी यूनिक आईडीज हैं, कितनी यूनिक आइटम आईडीज हैं, थिंग लाइक दैट, जिसके अंदर हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि हमारे पास डाटा के स्टैट्स क्या थे। वो सारे स्टैट्स जो वो डाटा में वो डाटा के सारे स्टैट्स जो इस तरह से हमने कैलकुलेट किए हैं। और इसमें अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज थी, हमने उनको भी फिल किया। तो दिस 8th सेल एक्चुअली आइडेंटिफाइज किया आपने जो है वो मिसिंग वैल्यूज जो फिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास जो डाटा के कॉलम्स हैं उनकी क्या टाइप्स हैं, क्योंकि हम लोगों को जब भी हमने मॉडल ट्रेन करना है तो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा होना चाहिए। अगर आपके पास किसी स्ट्रिंग या इस कैरेक्टर फॉर्म में के अंदर डाटा तो आपको उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉलम था जिसके अंदर 3 यूनिक स्ट्रिंग्स थी A, B और C, आप उनको रिप्लेस कर देते 1 to 1 3। So this is converting a categorical data into numerical data. So स्क्रॉलिंग डाउन हम देखते हैं कि हम लोगों ने जब डाटा को कन्वर्ट किया तो हमारे पास सारे कॉलम्स जो हैं उनकी टाइप इंटीजर और फ्लोट में आ गई, यानी कि न्यूमेरिक टाइप में आ गया डाटा। फिर हमने उस डाटा को एक दफा विजुअलाइज कर लिया कि हमारे पास जब न्यूमेरिक में हमने डाटा को कन्वर्ट कर दिया तो उसकी किस तरह से उसके कॉलम या रोज किस तरह से दिखती हैं और क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो सेल नंबर 66 के अंदर, क्योंकि अब हमारे पास बचा तो कोई नहीं है, लेकिन ये आप यूज इसलिए करते हैं कि आपके पास अगर कोई मिसिंग वैल्यूज वाली रोज हैं तो आप उनको बीच में से डिस्कार्ड कर दें। और इसके अंदर ये डिसीजन आप इस तरह से लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल डाटा है जिसके अंदर आपके पास 100,000 रोज है और उसमें से आप देखते हैं कि आपके पास जो मिसिंग वैल्यूज वाली रोज है वो 2 या 3 है। तो अगर आप इतने बड़े चंक ऑफ डाटा में से 2-3 रोज उड़ा देंगे तो आपका कोई ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास डाटा ही फॉर एग्जांपल 50 रोज का है और उसमें से आप 2 या 3 रोज ड्रॉप करते हैं तो वो शायद आपके लिए कंसर्निंग हो। तो उसमें आप फिर ये करते हैं कि आप उन मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करने के बजाय आप उनको किसी भी तरह से फिल कर देते हैं, नियरेस्ट वैल्यू से फिल कर दें, एवरेज से फिल कर दें, किसी भी तरह। सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों ने ये किया कि डाटा को जो है वो सिक्वेंशियली स्प्लिट किया। सिक्वेंशियली का ये मतलब है कि अगर कोई आइटम जो कि जिसकी 5 years की हमारे पास सेल है तो हमने उसको सिक्वेंशियली ऐसे स्प्लिट किया कि फॉर एग्जांपल 3 साल का डाटा, पहले 3 साल का डाटा अलग कर लें और अगले 2 साल का डाटा अलग कर लें। इसको सिक्वेंशियली स्प्लिट करने का मकसद ये था कि आपने फोरकास्टिंग करनी है। तो अगर आप रैंडमली बीच में से इसको स्प्लिट करेंगे तो आप फोरकास्टिंग उस तरह से नहीं कर पाते। सीक्वेंशियल स्प्लिट करने से फायदा आपके पास ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 3 साल का डाटा जो है उसको ट्रेन कर लिया और अगले 2 साल में प्रेडिक्ट कर लिया। अगर आप रैंडम स्प्लिट करेंगे तो आपको नहीं पता कि आपके पास जो भी अब टेस्ट के अंदर सैंपल आ रहे हैं वो अगले 2 साल में से आए या पीछे कुछ सालों में से किस तरह से। तो दिस इज सीक्वेंशियल स्प्लिटिंग ऑफ डाटा। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखेंगे कि अब ये डाटा हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो गया, आपका टेस्ट सेट और ट्रेन सेट जो है वो तैयार हो गए। तो अब आप उसके बाद एक जो जनरल पाइपलाइन होती है उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको स्केल करते हैं। स्केलिंग का ये फायदा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा के अंदर कोई से भी 2 फीचर्स है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक फीचर एज का था और एक फीचर हमारे पास सैलरी का था। तो आपके पास जो एज होगी उसकी जो रेंज होगी आपके पास वो प्रोबेबली अराउंड 0 से लेके मैक्सिमम शायद आज के दौर में 120 और 150 तक चली जाएगी। लेकिन आपके पास जो सैलरी है उस कॉलम की जो रेंज होगी वो शायद आपके पास थाउजेंड्स के अंदर जारी होगी। तो जब आप इन दोनों कॉलम को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा मेजर फर्क आएगा, जिस फर्क की वजह से आपका एल्गोरिथम जो है वो किसी एक फीचर की तरफ बायस हो सकता है, क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है या न्यूमेरिक इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरे से काफी ज्यादा है। तो आप इन दोनों कॉलम्स को जो है वो स्केल कर देते हैं कि मैं एज को भी जो है वो 0 से 1 के दरमियान स्केल कर देता हूँ और सैलरी को भी जो है 0 से 1 के दरमियान स्केल कर देता हूँ, जिससे एट द एंड ऑफ द डे मुझे फायदा ये होगा कि मेरा जो एल्गोरिथम है वो दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा और जिसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली ज्यादा बन रही होगी वो उसको ज्यादा वेट देगा। तो ये कॉमन डेटा प्रिपरेशन की पाइपलाइन अगर हम यूज करते हैं कि आप डेटा को जो स्केल कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सिंपल
एल्गोरिदम को डाटा फीड किया और एल्गोरिदम जो है वो ट्रेन हुआ है। जो क्राइटेरिया हम लोगों ने चूज किया था वो मीन स्क्वायर एरर का क्राइटेरिया था कि आपके पास ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो आप इसमें ये देखते हैं आपके पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, ना कि आप ये देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल जो मैंने गिवन इसको डेटा पॉइंट दिया तो वो क्लास ए में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है, तो आप उनका फर्क निकालते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू से कितना दूर है। तो मीन स्क्वायर एरर है हमारे पास तो इसलिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास जो रिजल्ट है उनके कुछ ग्राफ्स बनाए जो कि स्लाइड्स के अंदर डिस्क्राइब भी कर दिए, और ओवरऑल जो फाइनल एरर रिपोर्ट हुआ है वो है 1.88 मीन स्क्वायर एरर, कि आपका जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है और जो एक्चुअल वैल्यू और जो प्रेडिक्शन है उसमें कितना फर्क है। 1.88 समवट क्लासिफाइज कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू थी 6 तो आपने जो भी प्रिडिक्ट किया है वो 4 होगा या 8 होगा, तो ऑलमोस्ट 2 का फर्क होगा उसमें आपके पास। सो अ गुड value for mean square error is 0, but we all know that 0 को achieve करना is like impossible. So we can say that the value lesser than 1 for a mean square error is a good value। कि आप अगर कह रहे हैं कि आप prediction कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके 5 आइटम्स 16 हैं, तो आप एक कम या एक ज्यादा की prediction कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फर्क नहीं। So this is from the demo। So now I think our presentation is concluded and we are open for any questions that you have। So any questions from the audience? Have you guys, Mustafa here, have you guys done any comparison for both the algorithms you have implemented, DNN and decision trees, and which one performed better, and or comparison over overall accuracy you achieved on both? Anything like that? हम लोगों ने DNN के साथ कोशिश की थी, लेकिन हम लोग कभी सक्सीड नहीं हो पाए उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने में, सो कंपेयर नहीं कर पाए। सही। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि आप लोगों ने आपने DNN और डिसीजन ट्रीज को प्रेफर क्यों किया इस प्रॉब्लम के लिए ओवर अदर रिग्रेसर और रिग्रेशन टेक्निक? सो इसको डिसीजन ट्री को परस्यू करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि एक इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम है और इजी टू कन्वे एल्गोरिथम। लेकिन फॉर एग्जांपल जब आप जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में जाकर आपके पास आपकी प्रेडिक्शन जो है वो काफी ज्यादा मैटर कर रही होती है, तो आप वही बात है मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं जिसमें हमारे पास करंटली LSTM टॉप ऑफ द लिस्ट है कि वो सीक्वेंशियल डाटा को या टाइम सीरीज डाटा को काफी अच्छा मॉडल कर लेते हैं। ठीक है। और जी, और एक और क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर हम लोग आई गेस सेट ऑफ रूल्स या नोट्स बढ़ाते जाएंगे तो आई गेस शायद आपने भी ये मेंशन किया होगा कि ओवरफिटिंग की तरफ हम मूव करते हैं, तो कोई ऐसा मेथड या कोई प्रोसीजर जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि अच्छा ये लिमिट इनफ होगी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओवरफिटिंग, और इससे पीछे होंगे तो हम अब एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वे कि हम लोग डेप्थ डिफाइन कर पाए या नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ रूल्स जितने होने चाहिए डिसीजन ट्रीज के लिए? इसके लिए यूजुअली आप अगर काम करें एकेडेमिया के अंदर तो आप इनिशियली जो है वो आप रिसर्च को रेफर कर रहे होते हैं कि मेरे से पहले जिन लोगों ने काम किया उन्होंने किस तरह से डिजाइन किया एल्गोरिथम और क्या डिजाइन किया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर भी इसका अंदाजा लगा सकता हूँ, और वो इस तरह से लगा सकता हूँ कि मैं एक अपना मैंने रखा हो ट्रेनिंग डाटा जिसके ऊपर मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और दूसरा जो है वो मेरा दूसरा जो है वो डाटा वो मेरा वो डाटा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब मैं ट्रेन कर लिया तो उसके ऊपर मेरे पास रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं। उससे मुझे काफी हद तक अंदाजा हो सकता है कि मेरे पास टेस्ट डाटा के ऊपर जो है वो किस तरह के रिजल्ट आएंगे। सो आप एक छोटा चंक ऑफ डाटा रख लेते हैं जिसके ऊपर आप चेक करते जाते हैं कि अगर मैं ये ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे पास किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि आपको काइंड ऑफ
इशारा दे रहा होता है कि आगे टेस्ट डेटा के ऊपर किस तरह से रिजल्ट आए, तो उसकी बेस के ऊपर अब अपने जो है वो हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते सही। हैं। मेरे और हम लोग हम लोग हम लोग वेट कर सकते हैं अपने वो पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स को, कि अगर कोई एट्रीब्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर कोई लेस इंपॉर्टेंट है तो एक ही वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल ना प्ले करे तो हम किसी तरह से उनको वेट कर सकें, या इस तरह का प्रोसीजर होता है? तो इस जी DCMP के अंदर जो स्प्लिट एवेल्युएशन क्राइटेरिया, वो एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो है वो आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपका कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो आपकी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आपको दे सकता है अगर आप उसकी बेस पे स्प्लिट करें, तो वो इसके अंदर DCMP की मैकेनिक्स के अंदर बिल्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच नौफिल। नो प्रॉब्लम। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है? हाय नौफिल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था, आई मीन दो क्वेश्चन है एक्चुअली, तो एक्चुअली ये सीक्वेंशियल क्वेश्चन है। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने एक तो आपने क्या डेटा को एनालिसिस किया था, फॉर एग्जांपल उसमें कोई सीजनैलिटी अगर उसके अंदर है डेटा के अंदर एक, और दूसरा जो मैं जो अभी सोच रहा, अभी मेरे माइंड में एक इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मीन ये मल्टीपल इसके अंदर टाइम सीरीज हो सकती हैं, आई मीन इस डेटा के अंदर, क्योंकि इसमें पैरामीटर्स बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर मल्टीपल टाइम सीरीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। और ये नॉर्मल रिग्रेसर है, आपने साइकिल प्लान का रिग्रेसर यूज किया जी? नॉर्मल रिग्रेसर है, तो इसके अंदर वो मतलब चीज कैसे हैंडल की हुई है? आई मीन क्या ये 1D रिग्रेसर है या मल्टीपल डायमेंशनल रिग्रेसर है? आई मीन एक क्वेश्चन था कि उस चीज को मतलब डेटा को एनालिसिस किस तरह से किया, और उसके बाद मतलब ये वाला डिसीजन कैसे था कि हम ये डिसीजन ट्री का यही वाला रिग्रेसर यूज करेंगे? आई मीन हाउ डू यू कम टू चूज दिस वन? सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन कि डेटा के अंदर सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, तो हम लोगों ने उसको कोशिश किया, इसी कोशिश के लिए हम लोगों ने जब उस डेटा को विजुलाइज करके देखा कि उसका ट्रेंड क्या है ओवर द ईयर और ओवर द मंथ्स, किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, उसमें किसी हद तक सीजनैलिटी थी, बिल्कुल थी। और जब आपके पास इस तरह का सीजनैलिटी आ रही होती है तो आप एक एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का, अरीमा नाम है उसका, आप वो यूज कर सकते हैं, जो वो सीजनैलिटी को काफी अच्छा कैप्चर कर सकता है। फॉर द सेकंड क्वेश्चन के डिसीएंटी क्यों यूज किया, तो हम लोगों ने उसमें जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम था उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है। सो अभी ये जो डिसीएंटी है ये किसी एक आइटम के लिए, किसी एक प्रोडक्ट के लिए। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर मल्टीपल टाइम सीरीज होंगी। अगर हम डिसीजन ट्री से ही जाते हैं तो हमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज चाहिए। Yes, exactly, that was my question. Thank you. हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार तारिक है। सो माय क्वेश्चन इज कि जो अभी टाइम सीरीज की बात हो रही थी तो मैं उसी क्वेश्चन पे ऐड अप करना चाहता हूँ। तो जब आपने शुरू में मतलब विजुअलाइज किया तो आपने मतलब ऑब्जर्वेशन का प्लॉट बनाया, मतलब कि जनरल ऑब्जर्वेशन जो होती है उससे आपने डिटरमिन किया डेटा को कि ये सीजनैलिटी इसमें है कि नहीं है, या जी आपने कोई उसके जो डेटा था उसमें जब आप डेटा को जब आप डेटा को प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे पास 3 सालों का डेटा है जिसके अंदर मुझे पता है कि हर डे के ऊपर एक आइटम जो कितना उसके पीसेस सेल होते हैं। जब आप उस डेटा को प्लॉट करते हैं तो आपको उस डेटा में खुद ही ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाता है कि आपके पास पहले साल के अंदर फॉर एग्जांपल जो भी डेटा का ट्रेंड रहा था वो एक माउंटेन टाइप की शेप बन रही थी कि आपके पास डेटा जो है वो अपना जो पीसेस सोल्ड है वो जनवरी से स्टार्ट होकर ऊपर जाते थे और फिर दिसंबर में वापस नीचे आ जाते थे। आपके पास ये एक ट्रेंड सा बन रहा था उसके अंदर, गॉसियन टाइप की शेप बन रही थी। और आप देखते हैं कि अगले साल के अंदर भी इसी तरह से शेप बन रही थी और उससे अगले साल में भी इसी तरह से शेप बन रही थी। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे पास ओवर द ईयर जो है वो डाटा के अंदर एक ट्रेंड है कि उसके अंदर साल के मिड में जाके उसकी सेल्स जो है वो बढ़ जाती हैं और साल के शुरू और आखिर में जो है उसकी सेल्स जो है वो कम रहती हैं। तो इस तरह से आप अंदाजा लगाते हैं कि आपके डाटा में ट्रेंड है या नहीं।
आपने अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें मतलब कोई एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसे इंक्लूड किया था, जिस तरह मतलब कि रिटेल में अगर आप देखें तो कोविड की वजह से एक एक्सटर्नल फैक्टर आया हुआ है तो आपकी सेल्स डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इस तरह का मतलब, या आपने बस एक जेनेरिक एक मतलब मॉडल रखा और उसी को कंसिडर किया कि हम मतलब ऑफ द इयर्स ये हो हम रहा लोगों ने इसमें एक जी हम लोगों ने इसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर यूज किया था, जो कि था कि आपके पास जो जो स्पेसिफिक कोई दिन है तो उस दिन कोई इवेंट था या नहीं था। इवेंट का एक आप फीचर होगा अगर आपने देखा हो शायद, तो इसके अंदर इवेंट का एक फीचर है जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा था। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 25 दिसंबर को कोई सेल होती है, तो उस दिन कोई इवेंट था या नहीं था, वो क्रिसमस थी या नहीं थी। सारी बात है, क्रिसमस होगी तो आपकी सेल्स में वो ज्यादा होंगी और अच्छी खासी ज्यादा होंगी। लेकिन अगर कोई भी इवेंट नहीं है तो आपकी जो नॉर्मल रूटीन चल रही है, जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, उस तरह से इसी तरह से आपके पास कुछ पब्लिक हॉलीडेज आते हैं जिन पे जाहिर बात है आपके पास सेल जो आपकी ज्यादा होगी, कि लोग जो है वो छुट्टी होती है उनको और वो यूजली निकलते हैं कुछ खरीदने या कुछ करने। तो आपको ये ट्रेंड जो है ये ओवर द ईयर भी नजर आएगा, अपार्ट फ्रॉम कि आपको किसी उसी दिन ही नजर आए, ओवर द ईयर भी नजर आएगा कि 25 दिसंबर को हर साल ही जो है वो आपकी सेल किसी आइटम की जो है वो ज्यादा होती है। इस तरह से कुछ आपके पास ऐसी हॉलीडेज आती हैं जो कि सडन हॉलीडेज होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आजकल भी चल रहा है, जैसे कोविड की वजह से कुछ आप छुट्टियां हुई हैं कि लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे, तो आपके पास इस तरह की जो हॉलीडेज होती हैं उनका ट्रेंड आपके पास आप उसकी सीजनलिटी नहीं देख सकते। मतलब इस साल कुछ छुट्टियां हुई हैं, आपको अगले साल वो छुट्टियां नहीं होंगी पब्लिकली, उसमें जो आपका ट्रेंड जो है वो नहीं होगा। लेकिन आपके पास जो इस तरह के जो आपके पास दूसरी छुट्टियां होंगी पब्लिक हॉलीडेज, उसमें आपको वेरी बहुत ट्रेंड एक नजर आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? Mustafa, here I have a question that while explaining DNN, Mark mentioned that for missing values, he used nearest values. So I wanted to confirm that what's the preferred way for missing values? We only use the nearest values, or we can use average values as well, or there is only single approach for that? तो इसमें मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए आप डिफरेंट आपके पास अप्रोच है। आप नियरेस्ट वैल्यू भी कर सकते हैं, आप उस कॉलम की जो है वो एवरेज वैल्यू भी उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके सोलली डिपेंड करता है कि आपकी डाटा की नेचर किस तरह की है और टाइप किस तरह की है। हम लोगों ने जो नियरेस्ट वैल्यू यूज की उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास जो डाटा था उसमें जाहिर बात है, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल फरवरी के अंदर किसी प्रोडक्ट की सेल हो रही है तो उसकी प्राइस थी $5, और उसमें आपके पास जो एक हफ्ते की जो है ना वो सेल प्राइस मिसिंग है। तो आप अगर उसके अंदर पूरे साल की एवरेज प्राइस उसके अंदर डालेंगे तो जाहिर बात है वो डिफरेंट आ रही होगी, क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल जो अगर पेट्रोल की देखना तो हमारे पास उसकी प्राइस जो वो अच्छी खासी वेरी करती है। तो अगर आप वहाँ पे मिसिंग वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू डाल दोगे तो वो काफी आउटलायर टाइप की होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने नियरेस्ट वैल्यू डाली कि जिस फॉर एग्जांपल फरवरी के महीने के अंदर ही अगर आपके पास कोई वैल्यू मिसिंग थी तो फरवरी के किसी वीक में से वैल्यू उठाओ और उसके अंदर रिप्लेस कर दो, क्योंकि यूजुअली उस प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस का वो भी ट्रेंड चल रहा होगा जो फरवरी के अंदर है, ना कि आप कोई एवरेज वैल्यू डाले। तो इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं कि आपने जो मिसिंग वैल्यू है उसको किस तरह से फिल करना है। Thank you so much, Nasir. Anyone else? I guess time वो All right, so जुल्फिकार है अगेन। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बस आप मुझे बता दीजिए कि आप ये जो अभी तो आप मेरे ख्याल से लोकल पे रन करें, तो प्रोडक्शन में आप ये कैसे रन करते हैं? मतलब कोई क्लाउड सर्विस यूज करते हैं आप, या क्या प्रोसेस है जब डेटा ज्यादा होता है? जी बिल्कुल, जब आपका डेटा ज्यादा होता है तो आप किसी क्लाउड इंस्टेंस पे जाके अपना ये कोड रख देते हैं और वहाँ से आपके पास जो है वो दूसरी तरफ से जब आपके पास जो भी आपका सेल्स का डेटा है, जो भी डेटा है वो आपके पास किसी क्लाउड बकेट के अंदर लोड हो जाता है। वहाँ से डाटा फैच करके उसको प्रेडिक्ट करके और सर्वर पे भेजते जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी बंदा बैठ के खोल के देख सकता है।
Okay, so I'm going to wrap up the session here because we're going a little over time. So thank you, Inam ul Haq, Maz, and Nofal for presenting today and delivering a very detailed session on using data, trends, and prediction algorithms to predict the future sales of an item. I'm sure there was a lot that the audience had to learn today. Thank you, everyone in the audience who attended the session today and for actively participating in the discussion that ensued. It really kept the session lively. Tomorrow we have another session in the Big Data Week. It's called the Object Detection. To be presented by Sanya Ashraf and Taimur Zahid. So stay tuned for that, and we hope to see an even bigger audience tomorrow. Thank you everyone for attending today, and that's it from us.